Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So there are only 3 of you. Let us wait for the others. Okay. Good morning, everybody. Let us start. Now there are 12 students with us. So today we will discuss a new topic and very interesting as well. And as far as analytical science is concerned, it is one of the unique techniques, that is radioactivity. So this is one of the best example of
the peaceful use of the nuclear materials, that is radioactive materials. So probably every one of you must be knowing what is radioactivity. So radioactivity is a phenomena in which some specific substances, they emit radiations naturally, and the radiation are of three types, that is alpha particles, beta particles, and gamma radiation. Alpha are known as the particles, similarly beta, they are also known as particles. On the other hand, gamma are the radiation. Okay. So anything which is called a particle that carries some mass. So alpha particle has a mass. Similarly, beta particle, they also have a mass. On the other hand, the gamma radiation, it is a radiation, it is a packet of energy that is, they do not possess any mass, and they do not also possess any electrical charge. So the three types of radiations emitted by some of the substances, they are alpha, beta, and gamma. Now, questions. What type of atoms or elements they emit such type of radiation? The answer is very simple. These are the atoms which are known as heavy atoms. Heavy atoms mean that their mass is greater than all the other elements in the periodic table. So their nucleuses are very heavy, so they are unstable, being very heavy. So they tend to disintegrate naturally, and the process is known as radioactivity. So there are some very interesting features of radioactivity. The most important of these is that these radiations are emitted no matter whatever the form of the element may be in a particular compound. For example, if the element is in elemental form, like uranium metal, plutonium, actinium, radium, and so on. So they may exist as elements, that is in elemental form. If you convert them to some compounds like chlorides, nitrates, sulfates, carbonates, fluorides, like uranium fluoride. So whatever the form may be, the radioactivity phenomena cannot be stopped. This is a very peculiar event occurring in the radioactive elements. This is very unlike the other chemical reactions. For example, rusting of iron. You all know that rusting of iron is a chemical reaction. It is the combination of iron with oxygen to form rust, which is chemically iron oxide. And you also know that this chemical reaction can be stopped or can be minimized by protecting the surface of iron, like painting, electroplating, or making alloy with some other metal.
So this process of rusting, like in stainless steel, there is a lot of iron, but rusting does not occur because it is the combination of other metallo element. So chemical reactions can be modified, they can be stopped, they can be initiated at any time. On the other hand, this process of radioactivity, this cannot be stopped at all. Whatever you do, आप उसके केमिकल फॉर्म को चेंज कर दें, मसलन यूरेनियम है, यूरेनियम का आप फ्लोराइड बना दें, क्लोराइड बना दें, नाइट्रेट बना दें, व्हाटएवर, उसको जो मर्जी कर लें, आप पेंट कर दें, उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, the radioactivity process will continue to occur. This cannot be stopped. So these radioactive elements are a very good source of energy in the form of gamma radiations. And there are so many peaceful uses of this. जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? Anybody who want to ask, you can interrupt me at any stage. So radioactivity is a wonderful phenomena, natural. मैं तो इसको कहता हूँ कि it is a natural gift to humanity. कि radioactivity ने तो होना ही है. Like if uranium is existing somewhere, तो उसने तो रेडिएशन निकालनी है, तो इट इज अप टू द ह्यूमंस के उससे फायदा उठा लें. तो आई यूजुअली कॉल दैट दिस इज न्यूक्लियर मटेरियल आर द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. Cleanest source of energy in the sense, if you compare with the other techniques like हाइडल पावर को हम कहते हैं बहुत सस्ती है और बड़ी साफ है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, लेकिन इसमें भी आप देखते हैं कि मशीनरी जो है इट इज़ ऑलवेज इन टच विद द एक्वस एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी एग्रेसिव. तो आपकी मशीनरी जो है वो रस्टिंग का शिकार हो जाती है. तो उसके लॉट ऑफ मेंटेनेंस करनी पड़ती है आपको मशीनरी की, और उसके अंदर भी फिर हीटिंग का एलिमेंट भी आ जाता है. तो रेडियो एक्टिविटी में तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता. ये तो वो कहते हैं कि दरिया तो बह रहा है, उसमें आप हाथ धोने हैं तो धो लें, जितने मर्जी लोग हाथ धो लें. बहती गंगा में आप हाथ धोते जाएं जितना मर्जी, तो उसने तो बहना ही बहना है, वो पानी ने तो जाना ही जाना है समुंदर में, तो वाई नॉट के उससे फायदा उठा लें. सो सिमिलरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने तो इमिट करनी है रेडिएशन. तो द ओनली thing which we need to take care of is कि हमें एनिमल्स को, प्लांट्स को और ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द रेडिएशन. दिस इज द ओनली चैलेंज. और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है कि ये आसानी से प्रोटेक्शन हो सकती है, क्योंकि if you study the properties of alpha, beta and gamma radiation, तो alpha particles जो हैं वो तो कागज से भी आप उसको रोक सकते हैं. Small thicknesses can block the alpha particles. Beta particles जो हैं वो थोड़े से और फास्ट होते हैं, तो उससे थोड़ी सी आप और थिकनेस कर लें मटेरियल्स की, तो यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ. ऑन द अदर हैंड गामा रेडिएशन जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो वो भी दे कैन आल्सो बी कंटेन. कि लेड जो है, लेड ऐसी चीज़ है कि वो टोटली ब्लॉक कर देती है गामा रेडिएशन को.
तो अब अगर आपकी दीवारें लेड की हैं, और दूसरा इसका चीपर, क्योंकि लेड तो फिर बड़ा महंगा पड़ेगा कि लेड की आप बिल्डिंग बनाएं, तो इसका अल्टरनेट ये है कि कंक्रीट की आप ज़्यादा थिकनेस की दीवारें जो हैं वो बना लें। तो इफ़ यू सर्च आउट द न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो आपको डोम से नज़र आएंगे बने हुए। तो वो डोम जो है उनकी जो दीवारों की थिकनेस है वो फुटों में होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा थिक दीवारें बनाई होती हैं। तो एज ए रिजल्ट यू कैन प्रोटेक्ट द लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ फ्रॉम रेडिएशन। तो उससे आप एनर्जी जो है वो आप ले सकते हैं। तो इसकी एनर्जी जो है, क्योंकि दिस इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना कि न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है, वेर एज जो बाकी हम रिएक्शंस स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो उन सब में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता। सो दे आर ऑल chemical reactions which are being there by the transference of electrons or sharing of electrons or breakage of bonds or formation of bonds. On the other hand, जो nuclear reaction है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, उसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है। तो either it can be breakdown or इसका उलट फिनोमेना है फ्यूजन, के छोटे जो न्यूक्लियाई है वो आपस में फ्यूज होके बड़े न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई बना सकते हैं। जिस तरह के हाइड्रोजन के दो एटम आपस में न्यूक्लियाई जो है वो हो जाए तो वो ड्यूटेरियम बन जाता है। न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के अंदर अगर आप न्यूट्रॉन डाल दें एक और, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, देयर इज़ नो न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रॉन उसमें ऐड कर दें बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो वो न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, उसका मास 2 हो जाता है, तो एज ए रिजल्ट वो ड्यूटेरियम कहलाता है। तो फ्यूजन और फिशन ये दो न्यूक्लियर रिएक्शन है विच आर आउटकम ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अब हम इसके बारे में वी विल डिस्कस कि हाउ दिस टेक्निक कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर एनालिटिकल पर्पस। तो इसमें वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिके रेट, डिके। तो डिके क्या है? ये डिके, तो डिके ये है कि as we have learned that all the radioactive elements they keep on emitting radiation, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो मास है वो रिड्यूस हो रहा होता है विद टाइम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिके। तो हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक खास स्पीड है डिके की, जिसको डिके रेट कहते हैं। कुछ एलिमेंट जो हैं दे डिके फास्टर and there are some other elements, radioactive elements, which decay at a slower rate. So decay rate जो है, because this is a specific characteristic of any radioactive element, तो इसको exploit करते हुए we can make use of this technique as the powerful analytical tool. So the other parameter which is related with the decay is known as half-life. So half-life, why not the full life? Can anybody respond? Why do we need to determine half-life instead of the full life? Can anybody respond?
So so that we can know the stability of an element. So anything which cannot be determined definitely, मसलन किसी की लाइफ अगर हम डेफिनेटली डिटरमिन नहीं कर सकते तो देन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। इसकी मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि मसलन इफ यू आर टेकिंग ए मेडिसिन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेरी कॉमन मेडिसिन, आप एस्प्रिन लेते हैं, तो आपने एस्प्रिन की एक टैबलेट ले ली ओरली, तो वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्रीट होती रहती है। ओके, तो डज एनीबॉडी नो कि एक टैबलेट जो है वो कितने दिनों में कंप्लीटली ब्लड से या हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी? डज एनीबॉडी नो दिस? ये है सिनारियो which compels us that there should be some other parameter which can be definitely determined. For example, आपने आज एक टेबलेट ली है, तो आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो उसका लेट्स से 30% रह जाता है, अगले आधे घंटे में और कम हो जाती है और कम होती जाती है। इस स्टेज में कम के आपके जो एनालिटिकल टेक्निक है उसकी वो लिमिट ऑफ डिटेक्शन से लोअर हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि जी वो बॉडी से निकल गई, हालांकि वो निकली नहीं होती। यू नेवर नो कि अगर आप इफ यू यूज मोर सेंसिटिव एनालिटिकल मेथड तो स्टिल इट इज डिटेक्टेबल कि वो कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट नैनोग्राम्स में, पिकोग्राम्स में कोई ना कोई आपको वो अमाउंट उसकी मिल जाएगी, तो वो बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई होगी। तो इसका मतलब है कि उसकी जो बायोलॉजिकल लाइफ है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज नॉट नोन। तो दैट इज व्हाई ड्रग्स में भी, ऑल मेडिसिन के अंदर हम बायोलॉजिकल लाइफ की बात नहीं करते, हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात करते हैं कि कितनी देर में। हाफ लाइफ को फिर हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ टाइम इन विच हाफ ऑफ द मटेरियल डिकेज। फॉर एग्जांपल, आपने 300 मिलीग्राम की टैबलेट ली है, तो उसकी अगर हाफ लाइफ जो है वो 1 आवर है, तो व्हाट डज इट मीन? क्या समझे आप इससे? अगर उसकी हाफ लाइफ 1 आवर है और आपने 300 मिलीग्राम की टैबलेट ली है, तो इसका क्या मतलब है? कैन एनीबॉडी रिस्पॉन्ड? सर हाफ, एक आवर में मतलब वो हाफ रह जाएगी, मतलब 150 मिलीग्राम रह जाएगी। एग्जैक्टली। और अगले आवर में वो कितनी रह जाएगी? 0। नो सारी नो, 150 हाफ रह जाएगी, जो पहले वाला हाफ है उसका। हाँ, एवरी टाइम जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका हाफ, तो हाफ करते जाएं आप, तो इसका मतलब वो हर चीज का हाफ होगा, उसका 0 तो आएगा ही नहीं कभी भी। ओके, इज दैट क्लियर? यस। ओके, तो हाफ लाइफ जो है वो डेफिनेटली हम डिफाइन कर सकते हैं कि आप मेजर कर लें कि कितने टाइम के बाद वो आधी रहेगी, तो इसलिए हाफ लाइफ पैरामीटर जो है। सिमिलरली ये जो मैंने एग्जांपल दी है, सिमिलरली दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका पता ही नहीं है कि वो उनकी फुल लाइफ क्या है, तो एज ए रिजल्ट कईयों की तो बिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि we will be unable to determine the full life, so then we have to define the half life। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो फर्ज किया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी 50 ग्राम क्वांटिटी आपने ली और उसकी हाफ लाइफ 5 डेज है, तो दैट मीन के 5 डेज के बाद कितना रह जाएगा वो? Yes. 75, 175 आधा रह जाएगा ना, 50 का 25 रह जाएगा। ओके, तो अगले उतने टाइम के बाद फिर उसका आधा रह जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, व्हिच इज वेरी वेरी सिंपल। तो इसको हम यूज करेंगे, इस पैरामीटर को, टू डिटरमिन or to
apply this technique as an analytical tool. तो अब हम आते हैं some basic definitions like sorry. हाँ कि what is the basic measure of radioactivity? तो ये जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना था, you probably know, all of you know कि who discovered this phenomena? हाँ जी, बताएंगे आप? आयशा जी बेटे, anybody can respond कि who determined the radioactive phenomena? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिटरमाइन किया? सर हेनरी बेकरेल। मैरी क्यूरी और क्यूरी जो उसका हस्बैंड, ये कपल था, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमेना डिस्कवर किया। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप कि वो कैसे डिस्कवर हुआ, कि ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ये घर पे ही इन्होंने लेबोरेटरी बनाई हुई थी और ये मिनरल जो है, नेचुरल अकरिंग जो मिनरल सोर्सेज हैं, उनकी रिसर्च करते थे। घर में ही उन दोनों की लेबोरेटरी थी। तो एक मिनरल इनके पास ऐसा आया कि वो लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने, आपको पता है कि जितने भी ये फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस हैं या अंग्रेज जिनको हम कहते हैं, तो वो हमेशा कैमरा ज़रूर रखते हैं। कहीं ट्रिप पे जाएं तब भी, वैसे भी डेली लाइफ में हर वक्त उनके शोल्डर पे कैमरा होता है। तो दे आर इंटरेस्टेड टू कैप्चर द ओकेजन्स। तो उन्होंने लैब के अंदर कैमरा रखा हुआ था। तो पुराने कैमरे आपको पता है उसमें क्या डालते थे? आजकल तो डिजिटल है ना, तो पुराने कैमरे में क्या डालता था, किसी को पता है? सर नेगेटिव डालते थे। नहीं, वो फिल्म कहलाती थी, फोटोग्राफिक फिल्म। वो रील्स ही मिलती थी। आजकल भी वो शायद होंगे कुछ कैमरों में, लेकिन ज़्यादातर आजकल डिजिटल है। तो वो फिल्म क्या होती थी, उसके ऊपर वो प्लास्टिक की एक शीट है, जैसे एक्सरे की शीट आपने फिल्म देखी होगी, तो उसके ऊपर केमिकल की कोटिंग होती है, सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं। तो जब उस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पे इमेज बन जाता है, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो इसका मतलब कि जब वो फिल्म, अगर आप को याद हो या आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो कि वो फिल्म जो है वो उसको लाइट में एक्सपोज नहीं करते, जब कैमरे में डालनी होती है तो बस डाल देते हैं, फिर उसको निकालते नहीं हैं। अगर वो निकालेंगे तो जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए उसको निकालते नहीं हैं, ताकि वो जो है वो एक्सपोज ना हो जाए टू लाइट। तो अगर वो एक्सपोज हो जाती है तो फिर वो सारा का सारा वो धब्बा सा बन जाता है, तो उसके ऊपर फोटोग्राफी नहीं हो सकती। तो वो कैमरा उन्होंने रखा हुआ था लैब में। तो अचानक उन्होंने मॉर्निंग में आके देखा कि उसकी जो फिल्म थी वो एक्सपोज हुई थी, यानी उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बन रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये एक्सपोज हो गई। तो वो एक दूसरे से पूछने लगे कि जी आपने तो नहीं इसको एक्सपोज किया, आपने एक्सपोज नहीं किया। तो दे सेड कि नहीं, हमने तो नहीं किया। तो फिर क्यूरियोसिटी हुई, तो उन्होंने फिर अगले दिन ऐसे ही खुद इंटेंशनली दोबारा वो रखा। फिर वैसा ही फिनोमिना हुआ कि उनके जो कैमरे के अंदर फिल्म थी वो फिर एक्सपोज हो गई। तो फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि देयर इज समथिंग पेक्यूलियर इन आवर लेबोरेटरी। तो अगर हमारे पाकिस्तान में होता तो हम क्या सोचते
हम कहते कोई जिन्नात हैं या कोई इस तरह की चीज़ है। तो देवर द साइंटिस्ट, तो उन्होंने साइंटिफिक थिंकिंग, उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। तो दे स्टार्टेड रिमूविंग वन बाय वन, जो उनके पास वो पड़ी थी रॉक्स, मिनरल्स, तो दे स्टार्टेड रिमूविंग देम वन बाय वन फ्रॉम द लैब। तो पता चला कि वो ये जो रेडियम है या यूरेनियम है, इस तरह की जो रॉक्स थी, उनकी वजह से वो हो रहा था। तो उन्होंने फिर ये साइंटिफिकली रिपोर्ट किया कि एक पेक्यूलियर किस्म की रेडिएशन जो है दैट इज बीइंग एमिटेड बाय दीज मटेरियल्स, तो उसका नाम फिर रेडियो एक्टिविटी आ गया। तो दिस वाज द स्टोरी हाउ इट वाज डिस्कवर्ड बाय दिस कपल। तो उन्हीं के नाम से फिर जो रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है, जो मेजर करने का यूनिट है, उन्हीं के नाम से, ये क्यूरी के नाम से ये जाना जाता है, तो जिसका सिंबल है CI। तो नाउ वी विल डिफाइन के व्हाट इज ए क्यूरी। वन क्यूरी का मतलब क्या है? जिस तरह एक ग्राम होता है, इसी तरह ये रेडियो एक्टिविटी का एक यूनिट है क्यूरी। तो वन क्यूरी इज वो कितने के बराबर है, कितने पार्टिकल उसमें से डिसइंटीग्रेट होकर निकले, तो वो वन क्यूरी कहलाएगा। तो वो वन क्यूरी इज इक्वल टू 37 बिलियन ऑफ एटम्स डिके इन 1 सेकेंड। यानी ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है, ये कंटिन्यूस नहीं है। जिस तरह हम बल्ब जला देते हैं तो कंटिन्यूस लाइट आती रहती है, तो ये इस तरह का नहीं है। रेडियो एक्टिविटी इस तरह है कि अभी यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट पड़ा है, तो वो रेडिएशन खारिज करेगा, फिर थोड़े अरसे बाद फिर खारिज करेगा। इस तरह से वो इवेंट्स कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव इवेंट्स होते हैं, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर एक्टिव हो जाता है, फिर रेस्ट करता है, फिर एक्टिव हो जाता है। इस तरह से इवेंट्स होते हैं। तो अगर 37 बिलियन यानी 37 अरब हम अपनी जुबान में कहें, एटम्स जो हैं वो 1 सेकंड में डिके हो जाएं किसी भी मटेरियल के, तो इसको हम कहते हैं वो 1 क्यूरी की रेडिएशन खारिज हुई है। तो now we have defined that 1 curie is equal to 37 बिलियन। तो बिलियन 10⁻⁹ होता है ना, ये सबको पता है। बिलियन, अरब 10⁻⁹। मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶ होता है। मिलियन 10 लाख। वेरी गुड, 10 लाख। यस, मिलियन। तो 10⁻⁶, 10⁻⁹ जो है वो बिलियन है। तो 37 बिलियन, तो इसको अगर 3.7 लिखेंगे तो वो 10⁻10 हो जाएगा 9 के बजाय। तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतने अगर एटम्स किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिके कर जाएं, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी है। सो इसको हम अदर वर्ड्स में भी डिस्कस, इफ द रेट ऑफ डिके इज ग्रेटर देन 37 बिलियन atoms in 1 second, then the source would have an activity greater than 1 curie। और अगर इससे कम होगा तो हम कहेंगे कि उसकी एक्टिविटी इट इज लेस देन 1 क्यूरी। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू, अब जुबानी बोलें क्या होगा? 1 क्यूरी इज इक्वल टू कितने बिलियन एटम्स पर सेकंड? बोलें। 37। नो, 3.7 इंटू 10 पावर, ये फिगर आपने याद, 10⁻10। 10, वेरी गुड। ये याद रखिए, ये आगे एनालिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। ओके, तो अब देर आर सम वेरी स्मॉल एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस, ये आपने करना है। ये आपको इसको बार बार पढ़ना है, और क्योंकि अभी टाइम हमारा 4 मिनट रहते हैं,
तो ख़त्म हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको बार बार पढ़ें और ये जो एक्सरसाइजेज छोटी छोटी दी हुई हैं इनको वर्कआउट करें खुद से। तो अब पहले पे हम कहते हैं कंसिडर 2 रेडियो एक्टिव सोर्सेज। फर्ज किया 2 एक्टिव रेडियो एक्टिव सोर्सेज, एक यूरेनियम है, एक प्लूटोनियम है। तो एक का जो डिके रेट है वो है 18.5 बिलियन एटम्स पर सेकंड और दूसरे का है वो 74 बिलियन एटम्स पर सेकंड। तो अब एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज ये डिटरमिन देयर एक्टिविटीज इन क्यूरीज। तो एक का 18.5 बिलियन है पर सेकंड, तो ये कितने क्यूरी होगा? क्योंकि एक क्यूरी जो है वो कितने बिलियन है? 37 बिलियन। ओके, तो फिर ये कितना क्यूरी हो जाएगा? 18.5 बिलियन। जी बोले, ये आधा है ना उसका, 37 का आधा है। तो हाँ, ये कितना क्यूरी हो गया फिर? हाफ क्यूरी, यानी 0.5 क्यूरी। अच्छा, दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो डिके रेट है वो 74 बिलियन एटम्स पर सेकंड। तो अब ये कितने क्यूरी बन गया? 2 क्यूरी, डबल हो जाए। इसको 37 से डिवाइड कर दें तो ये 2 क्यूरी है। तो इस तरह से ये छोटी सी कैलकुलेशन है कि आपको अगर डिसइंटीग्रेशन रेट दिया हुआ है तो you can determine the radioactivity in terms of curies। ठीक है, ये ऐसे ही एक्सरसाइज है जिस तरह आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, मोल को ग्राम में कर लें एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज है, तो ये आपको देखना है। अच्छा, अब अगला पैरामीटर है रिलेटेड टू एक्टिविटी के हाउ टू कंपेयर द 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कंपैरिजन का मतलब होता है, हम कहते हैं कि जी एक एलिमेंट जो है वो यूरेनियम है, दूसरा प्लूटोनियम है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो ये कंपैरिजन हम कैसे करें? क्या हम इन टर्म्स ऑफ क्यूरीज कर सकते हैं? तो इसका बेहतर तरीका ये है कि क्यूरीज की बताए यानी एक्टिविटी की बजाय हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है कि इट इज द एक्टिविटी इन क्यूरीज ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सोर्स। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स का 1 ग्राम ले लें तो जितनी क्यूरीज वो इमिट करेगा रेडिएशन की, वो उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अगर कम क्यूरीज दे रहा है और प्लूटोनियम जो है उसका 1 ग्राम ज्यादा क्यूरीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्लूटोनियम है इट इज मोर रेडियो एक्टिव एज कंपेयर्ड विद। तो कंपैरिजन जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है। जिस तरह ग्रेविटी है, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका एक होता है। ओके, इस तरह हीट है तो स्पेसिफिक हीट होता है। तो ये क्वांटिटी के साथ उसको अटैच कर दें, टैग कर दें, तो वो स्पेसिफिक कहलाते हैं। तो लिहाजा एक हो गया, एक पैरामीटर हो गया सिंपल एक्टिविटी यानी क्यूरीज में, जिसमें 37 बिलियन या 3.7 into 10 power 10 एटम्स पर सेकंड का डिके होता है, वो है। और दूसरा है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है? इसकी डेफिनेशन कि 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सोर्स, 1 ग्राम किसी का भी ले लो, वो कितने क्यूरीज जो है वो प्रोड्यूस करेगा रेडिएशन की। तो दिस इज नोन एज